स्टार्टेड। बाहर जा सकते हो, ये करना है। ओके स्टार्ट। Okay, good afternoon, students. Yes, so let's start. Uh, I think last time what we have done, we have completed till this much. I think we have to start with baking soda, isn't it? Am I right? Your what about the Swarangi, Yuraj? Yes, Yuraj, Swarangi. Last time what we have done, beta? Don't know. Okay, I think we have done this much. We have to start with baking soda, right? So let's start with baking soda over here. Yuraj, am I audible to you? Yuraj, युवराज ने अपना माइक ऑन नहीं किया। Okay, so chapter, okay, chapter number 2. So this much baking soda, right? ना baking soda जिसको हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, right? So baking soda, what is the formula of baking soda? Baking soda, the formula of baking soda is NaSCO3, sodium hydrogen carbonate, or you can say sodium bicarbonate, right? Now, what is the preparation of hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate? How will you prepare? So if you react sodium chloride NaCl with carbon dioxide in presence of water and ammonia, अमोनिया और वाटर के प्रेजेंस में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से इसको रिएक्ट करेंगे, व्हाट यू विल गेट दिस। यहाँ से क्या होगा, इसको मैं ओपन करता हूँ, बेटर रहेगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैं टेक्स्ट बुक लगाता हूँ, नोटबुक पे, सॉरी, नोटबुक पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। राइट, so NaCl, right? When NaCl react with carbon dioxide in presence of water, HOH, and NH3, ammonia, what will happen? क्या होगा, ये जो NH3 है, राइट, नेगेटिव है, वो क्या करेगा, H को लेगा। जैसे H को लेगा तो यू विल गेट NH4 प्लस। क्या मिलेगा, NH4 प्लस, एंड दिस NH4 प्लस विल गो टू Cl माइनस, राइट? तो यू विल गेट NH4Cl सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर, क्या बचा है, मैंने आपको बोला था रिमेनिंग पार्ट निकालने का और उसको अरेंज कर ले। So if I take remaining part, so sodium is how many sodium atom is there? One sodium atom is there, right?
OH is there, one H is there, carbon one carbon is there, and oxygen here two and here one. Total three oxygens are there. Two elements are left to arrange, right? हाइड्रोजन एंड कार्बन. सो लेफ्ट में कौन आएगा, मिडिल में कौन आएगा? तो मिडिल में वो आता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है. हियर कार्बन वैलेंसी इज 4 एंड हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1. So I will write H over there and C in the middle. And now I will put this number of elements. So 1 is there, so I will not put. And then this oxygen is 3, so I will put 3 over there. So we will get NaCO3. So this is the preparation of NaCO3, sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate from sodium chloride. Understood, beta? Understood. That if you want to prepare sodium washing soda, right now, sodium carbonate, right now, you can prepare it by from sodium hydrogen carbonate, that is baking soda. Baking soda से हम washing soda बना सकते हैं. How? If you heat this sodium bicarbonate, right ना, उसको heat करेंगे, what you will get? यहाँ से क्या होगा? NaHCO3, right? Yes. NaCO3 जब react करेगा NaCO3 से, राइट, 2 moles ऑफ NaCO3 लिया मैंने और उसको क्या किया, हीट किया, एकदम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3, राइट. Na2CO3 मिलेगा. तो Na2CO3 निकल चुका, यहाँ से Na2 निकल गया, समझ लो, और यहाँ से CO3 निकल गया. व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस रिमेनिंग पार्ट? H2, दिस इज H, and this is as H2 and CO3. And this H2CO3 will break into two apart, water, H2O and carbon dioxide. So in short, you will get what? Sodium carbonate, Na2CO3 and water and carbon dioxide gas. Right now, so because of this carbon dioxide only, right now you get spongy material. Right now we are using the sodium uh, carbonate, right now sodium bicarbonate, sorry, sodium bicarbonate in our cooking material. Cake वगैरह बनाना है या कुछ spongy चीज बनाना है, ढोकला and all. So what we do, we use this sodium bicarbonate, sodium baking soda, खाने का सोडा जो होता है यूज करते हैं. तो होता क्या है, वाई जो हमारा जो एक चीज़ें जो स्पॉन्जी हो जाती है, बिकॉज उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ पे होल्स बन जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर मटेरियल विल बी स्पॉन्जी. अंडरस्टूड बेटा? And this is written over here, you can see if you go through this part, so you will and here the uses of baking soda is given. So it is used in what here it is used इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड ऑल. स्पॉन्जी मटेरियल आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ यूज एज एंटासिड ऑल्सो. आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड खाते हैं, रेंटाइक्लोनिडीन, राइट, पेंटाप्रोजोल, राइट ना, एमिप्रोजोल, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं. तो ये सारे जो है एंटासिड जो होते हैं, वो एंटासिड क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट what a base. And which base is used, we are generally using this one, that is baking soda we are using in antacid. वैसे उससे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो भी यूज करते हैं, बट ये बेकिंग सोडा मोस्टली यूज होता है. इनो वगैरह होता है ना, उसमें बेकिंग सोडा होता है, इजंट इट? एंड एंटासिड हो गया बेटा.
and it is used also for is a, in fire extinguisher, right now. If you see, if the fire is of C type, that is of liquid, right? Liquid fire is there. Liquid means केरोसिन की फायर लगी हुई है, आग लगी है, तो आप केरोसिन की आग लगी हुई है या पेट्रोल की आग लगी हुई है, वहाँ पे जाके पानी तो नहीं डालेंगे आग लगी आग बुझाने के लिए, है ना, या डालेंगे? आपको अगर आग बुझाने का है, आपको पेट्रोल की आग बुझाने का है, तो आप क्या करेंगे? आप पानी डालेंगे? नहीं। अगर आप पेट्रोल की आग में पानी डालोगे तो आग क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी आग जो है, और ज़्यादा फायर जो है बढ़ जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम, यू विल यूज द सी टाइप एक्सटिंग्विशर, एंड सी टाइप एक्सटिंग्विशर consist of a powdery material, and that powdery material is nothing but a baking soda. Okay, understood? So it is used as a fire extinguisher, isn't it? And here we have already studied how to prepare next sodium washing soda, that is sodium carbonate. And this sodium carbonate, when you keep in air, right now, अगर इसको हवा में लगेंगे, it will absorb 10 molecule of water, and after absorbing 10 molecule of water, it converted into washing soda. हम लोग का ये जो बन जाएंगे वॉशिंग सोडा, जो कि हम लोग को बहुत जगह यूज है, दीवारों को साफ करने के लिए एंड अदर अदर चीज़ों को क्लीन करने के लिए। कोई भी चीज़ को क्लीन करना है तो हम लोग क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं बेकिंग वॉशिंग सोडा। आपकी दीवार पे अगर स्टेन लगेगा तो यू कैन यूज़ वॉशिंग सोडा, और उसको उसको ड्राई मतलब बोरैक्स है या वॉशिंग सोडा है, उसको यूज़ करके आप रब करोगे तो आपकी दीवार जो है क्लीन हो जाएगी, या भी कोई मटेरियल क्लीन हो जाता है जी। Therefore, it is also used in what preparation of soap, glass, and paper industry, and also used in preparation of borax. Borax is a also borax is also a compound of sodium एंड बोरॉन। उसमें सोडियम बोरॉन ये सब होता है, तो उसको बोरैक्स बोलते हैं, एंड वो भी यही चीज़ के लिए होता है। बोरैक्स का भी यूज सेम ही है, क्लीनिंग एजेंट की तरफ भी यूज होता है इन डोमेस्टिक पर्पस, राइट। इज ऑल्सो यूज टू रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर जो हार्डनेस होता है, अगर उसको रिमूव करना है तो उसमें आप बोरैक्स डाल दो या फिर वॉशिंग सोडा डाल दो, और उसको जब वॉशिंग सोडा डालेंगे तो आपका जो वाटर जो है हार्ड कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग को पानी जो है, देखो अपन हैवी वाटर जो होता है ना, उसमें सोप यूज नहीं होता। वाई? बिकॉज इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, राइट ना। वो क्या होता है, वो रिएक्ट सॉल्यूबल नहीं होता उसमें। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए हम लोग को? हम लोग यूज करते हैं सरफ, राइट ना, वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं ना। वॉशिंग पाउडर जो यूज करते हैं वो यूज हो जाता है, हार्ड वाटर में यूज होता है। वाई? बिकॉज वॉशिंग सोडा कंसिस्ट ऑफ वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा सॉरी वॉशिंग पाउडर कंसिस्ट ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, एंड वॉशिंग सोडा जो है क्या करता है, जो वाटर है उसको हार्डनेस को कम करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अंडरस्टूड बेटा? यस। हाँ, नाउ वी विल डू द एक्टिविटी ऑफ 2.15, that is, in this activity what we have to do, we have to check the color of copper sulfate is due to water of crystallization or not. We have to check uh, that the color of copper sulfate, that is blue, है ना? Why this is blue in color? And this is because of what? This is because of what? Water of crystallization, or some other reason is there? We have to find it out in this activity, right? So first question is what? Water of crystallization. What is water of crystallization? Right? So water crystallization is nothing but a water which is attached to the molecule. Normally, the compounds are hygroscopic in nature. What is hygroscopic nature? The compound which accept or which absorb the water molecule. Such compounds are called as hygroscopic nature. जो पानी को absorb करेंगे तो ऐसे compound को हम लोग बोलेंगे hygroscopic nature का compound है, right? So such compounds absorb water in different number of moles, right now. Some solid will absorb two moles of water, some will absorb 5 moles of water, some will absorb 10 moles of water. So this absorption of water is nothing but a water of crystallization. Here if you see this five molecule of water is nothing but a water of crystallization of copper sulfate, right now. So what is the definition of water of crystallization? It is a water molecule which is present inside the crystal, right now, right, which can be generally removed by heating. अगर ये सिर्फ अटैच होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, तो उसको अगर हीट करेंगे तो ये पानी उड़ जाएगा।
सो ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अंडरस्टूड बेटा? एक ही बच्चा पढ़ रहा है, तैमी, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, स्मृति, मनोयम? यस बेटा, यस का मतलब 10 स्टूडेंट्स आर देयर, 8 स्टूडेंट्स आर देयर, सो आठों का आंसर आना चाहिए। यस सर, वी गॉट इट। और प्लीज रिपीट इट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क मी, राइट ना? अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली टेल मी, प्लीज रिपीट इट, राइट? सो और अगर समझ में आता है तो यू हैव टू से मी दैट अंडरस्टूड सर, ओके? ऐसा नहीं होना चाहिए बार बार बोलना पड़े। तो इफ यू सी दिस रिएक्शन, what is the activity over here, what we have to do, we have to take copper sulfate, that is hydrated copper sulfate, right now, this with 5 moles of water. We will take a copper sulfate which is blue in color. What we will do, we will heat it. Second step is what, we will heat it, we will heat the copper sulfate solid, right, crystal. एंड व्हाट विल बी ऑब्जॉर्व, हम लोग क्या करेंगे जब हीट करेंगे कुछ देर के बाद, यहाँ से हम लोग को पानी के वेपर्स निकलते हुए दिखेंगी। एंड वेपर्स निकलने के बाद एक वक्त आएगा, दिस वाटर, सॉरी, दिस कॉपर सल्फेट विल बी वाइट, क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। एंड वाइट हो जाएगा, एंड इतना हो गया, वाइट हो गया। अब ये वाटर सल्फ वाइट हो गया, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसको हीटिंग को हटा दूंगा, अब इसको कूल करूंगा, ठंडा ऐसा एटमॉस्फेयर में से ये टेस्ट ट्यूब को रखा, तो क्या आएगा, अपने आप ही टेस्ट ट्यूब कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, फिर से ये कॉपर सल्फेट जो जादू से क्या हो जाएगा, व्हाइट से ब्लू हो जाएगा। नाउ ये जादू, ये कोई जादू था? नहीं, ये कोई जादू नहीं था। यहाँ पर क्या भैया, आप कोई भी अपनी एक्टिविटी में साइंस एक्सपेरिमेंट में दिखा सकते हैं आप। व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ, दिस कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट ना? एंड जब हमने हीट किया तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो थे पानी के मॉलिक्यूल वो उड़ गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या कलर जो है कलरलेस हो गया, व्हाइट हो गया। एंड आफ्टर दैट क्या हो गया, जैसे पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया तो ये जो है वापस से ब्लू कलर का हो गया। सो this means that, or by this experiment, by this activity, we can conclude that the color of copper sulfate is just because of water of crystallization only. Understood, beta? Yes, beta. Understood or not? फिर से एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? दो बच्चे हो गए। Yes. Let me take a attendance. So this is our activity number 2.15. So what is given over here? So what I have already taught you, that is given over here. Copper sulfate crystal, which seems to dry right now, contain water of crystallization. When we heat the crystal, water is removed and it turns to white right now. The motion, if you motion the crystal again, water will find a blue color, right now. And this blue color is because of what, water of crystallization. So here these 5 moles of water is water of crystallization, and this if you see the example of what that washing soda, so here 10 molecules of water is there, this is also a water of crystallization. If you see copper sulfate over there, so 2 moles of water is written over there, so it is also water of crystallization. These are the nothing but a what, this is a formula of gypsum. CaSO4 dot 2 moles of water is a water of crystallization, and it is a formula of gypsum, right now. If you see the plaster of Paris, have you heard about this plaster of Paris? कभी सुना है आपने? POP सुना है आपने नाम? POP? No? Yes sir, you might have heard, right now. You have heard about it. अब सुना होगा मालूम, जब कलर वगैरह कराए होंगे घर में, है ना, घर में कलरिंग वगैरह कराए होंगे, तो आपको पता होना कि दीवार पे जो है वो उसमें पीओपी कराया जाता है, पीओपी। सो पीओपी नाम सुना होगा, पीओपी। नाउ दैट इज पीओपी। व्हाट इज पीओपी? पीओपी इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कराते हैं। सो दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4 डॉट हाफ मोल्स ऑफ वाटर, CaSO4 डॉट हाफ मोल्स ऑफ वाटर। व्हेन, जब हम लोग ये जब उसको, सॉरी, हाँ, पेंट के अंदर लगाए, पेंट के अंदर जो व्हाइट कलर का लगाते ना, उसको सीलिंग वगैरह में लगाते हैं हम लोग, डेकोरेशन में। देखो डेकोरेशन में सीलिंग में अलग अलग अपन शेप बनाते हैं, तो पीओपी का लेग यूज करके बनाते हैं, राइट ना? तो वो जो पीओपी होता है, एंड पीओपी क्या होता है, जब लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो जिप्सी में कन्वर्ट होता है, वो हार्ड मटेरियल हो जाता है। अंडरस्टूड बेटा?
जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या, वो 1.5 मोल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड वी विल गेट द फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2 मोल्स ऑफ वाटर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। अंडरस्टूड बेटा? तो एग्जाम में दिस फॉर्म आपके ये फॉर्मूले आते हैं, आपको यू शुड लर्न इट और बाय वी कैन से दैट हम लोग को सारे फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ पीओपी? पीओपी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉपर सल्फेट हैंड, यस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसका केमिकल नेम क्या है? कॉपर सल्फेट, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब से बोल रहा हूँ, आप बोल भी नहीं रहे, मेरे मुंह से जब निकल रहा है। कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ मोल्स ऑफ वाटर, मीन्स हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी बोलते हैं। हेमी मतलब क्या होता है? आधा। अब वाटर मतलब हाइड्रेट, तो क्या हो जाएगा? हेमी हाइड्रेट। हाइड्रा मतलब पानी, हेमी हाइड्रेट, तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अरे बोलो बेटा, अंडरस्टूड और नॉट? So here we have completed our chapter number 2. So is it okay with you? All concepts are clear to you in chapter number 2? Yes. You're talking about today's lecture, or you're talking about chapters? Today's lecture about what, beta? You have joined from you're joined from where? Late from where? Baking soda. I have to teach, or washing soda. कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं आपको? कहाँ से पढ़ाऊँ? Only baking soda. So if you see this na beta, baking soda, so here if you, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा जितना डिटेल में बताया हूँ, इसलिए आपको ऑन डेली टाइम पे ज्वाइन होना है बेटा। हम लोग वेट नहीं करेंगे, आई विल वेट फॉर 2 और 3 मिनट ओनली। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, राइट? आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट, राइट ना, और आई विल नॉट रिपीट इट, राइट ना। आज पहली बार हो रहा है तो थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ फिर, राइट? हाँ, वो अलग बात है, डाउट सॉल्विंग लेक्चर अगर बीच में होंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट लेक्चर ऑल्सो। बट अगर आप लेट आते हैं तो इट इज योर ड्यूटी टू ज्वाइन अर्ली और ज्वाइन ऑन टाइम, राइट ना? So let's start. If you see over here, if you react sodium chloride with what carbon dioxide in presence of water and ammonia, it forms what? It forms sodium bicarbonate and ammonium chloride. How it form ammonium chloride? Here this ammonia react with H, है ना? H and OH, वाटर का फॉर्मूला क्या? H and OH होता है। तो H और OH में से जो H होता है ना, वो H को अमोनिया रिएक्ट कर जाता है, एब्जॉर्ब करता है एंड फॉर्म अमोनियम आयन। क्या बनाता है? अमोनियम आयन, एंड दिस अमोनियम आयन विल रिएक्ट विद व्हाट? Cl, and it gives what? Ammonium chloride, that is NH4Cl. And what is remaining over here? We have Na over here, H is remaining 1, Na1, O3 are there, and C is 1. So if you what arrange this element, you will get what? NaCO3. How to arrange? I have explained you in the start, right? I will not repeat it. It will take time. So if you arrange sodium, hydrogen, carbon, and oxygen in order, you will get NaCO3, राइट? सो जो अमोनिया होता है, अगर उसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं? फर्स्ट इज व्हाट? इट इज यूज टू मेक अ स्पॉन्जी मटेरियल लाइक केक एंड ऑल। वो बनाने के लिए यूज होता है, बिकॉज उसको जब हीट करेंगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिससे मटेरियल स्पॉन्जी होता है। देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसके अंदर पाउडर निकलता है, एंड दैट पाउडर इज नथिंग बट अ बेकिंग सोडा ओनली, इजंट इट बेटा? अंडरस्टूड? So we have completed our chapter number 2. If you have any doubt, you can ask me later on, right now in doubt solving lecture. Now it is your duty to go through all two chapters. Both two chapters you have to go through and you have to find out your doubts. आपको डाउट निकालना रहेगा कि आपके कौन कौन से डाउट है, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन इट, ओके? इजंट इट? Okay, now we will start our third chapter. Which one? That is metals and non-metals. We'll start with metals and non-metals.
So metals and non-metals, if you go through the chapter textbook of ninth, metals and non-metals are classified on the basis of their property. We have studied the classification of metals and non-metals in your ninth standard book, isn't it? Right? So we can classify the all element, right? And in the start of chemistry also, modern chemistry. If you see the era of modern chemistry, start of modern chemistry, which is started from 18th century, right? So the first classification was done by what? Whom? Do you know? किसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था फर्स्ट? नो? ओके ओके, इसीलिए आपको थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ बेटा. So the first person who classify the element right now on the basis of their properties right now is Antoine Lavoisier. कौन था भाई? Antoine Lavoisier. Do you know who is him? यस बेटा, आपको पता है कि कौन है एंटोनी लेवाइजर? कौन होता है, कौन था? नाम सुना है कभी किसी ने? हम केमिस्ट्री, वेरी गुड, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड वी डोंट नो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, राइट? केमिस्ट्री की अब्बू जान, डैडी. हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेवॉइजर, राइट? केमिस्ट्री के दो फादर है, मतलब केमिस्ट्री के दो फादर है, दो डैडी, ऐसा नहीं है. असल में केमिस्ट्री के दो एरा है, एक मॉडर्न एरा, एक ओल्डन एरा. ओल्डन एरा के जो फादर है वो है जाबिर इब्न हय्यान, एंड मॉडर्न एरा के फादर जो है वो आपको मिलेंगे एंटोनी लेवॉइजर. आप अगर गूगल यूट्यूब पर हो या विकीपीडिया पर हो या टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ोगे आपको पता होगा देर आर टू एरा, राइट? सो ओल्डन एरा के जाबिर इब्न हय्यान कंफर्म है, एंड मॉडर्न एरिया के 90% बुक में और जगह मोस्टली जगह पे आपको क्या मिलेगा? एंटोनी लेवॉइजर मिलेगा. बट कुछ जगह पे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम भी आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम भी आए हैं, जब मैंडलीव का भी नाम है उसमें इंक्लूडेड है, एंड अदर साइंटिस्ट के नाम भी है. बट क्योंकि 90 और 95% जगह पे आपको एंटोनी लेवॉइजर बोला जाता है, तो इसीलिए कोई अगर पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यू विल से एंटोनी लेवॉइजर इज द फादर ऑफ chemistry. So first classification was also done on the basis of property. So we will discuss the property over here. Now we will discuss the properties of element. On the basis of that, we will discuss which element is metal and which element is what? Non-metal. Right now, we will learn about metals and non-metals. We will not go into metalloid part right now. We know that what is metalloid. I will say you just introduction about it, right? So what is non-metalloid? Metalloid is just the element which have what? Both property. The element the element which is having properties in between the metal and non-metal, or intermediate properties of metal and non-metal, such elements are called as metalloid. Understood, beta? So we will not discuss about metalloid. We will only discuss about metals and non-metals. Yes or no, beta? And we will do one by one activity on the basis of their properties also. So let's start. I will show you the notes which I have made for you. Yeah, which one? Which chapter are you talking about? Second or third? Third one, yeah. It is given that much only. Activities are only given, na? So we'll discuss and we'll try to understand what is given in that activity, right? Na? Activity में क्या दिया हुआ है? What is the conclusion of activity? We will understand. Try to understand. Okay, बेटा? Okay. Now my question is that what is metal? Metal क्या होता है? We have already explained. I have already explained you. I think so. और नहीं बताया तो मे भी शायद मैंने ISC बोर्ड में पढ़ाया होगा. I don't know. So यहाँ पर if you see what is metal, metal is the element who has tendency to lose the electron. ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, जिसको ये उनका खासियत है, उसकी एक नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, राइट ना? राइट, लूज कर देते हैं मतलब कि एग्जांपल सोडियम. So sodium, if you see the atomic number of sodium is 11. So I will write configuration over here. So 2, 8, 1. Here the valence electron is the
electron which is present in valence shell or outermost shell, and these electrons are called as valence electron. Here only one electron is there. कितने इलेक्ट्रॉन है? वन इलेक्ट्रॉन है. हर एक बंदा पूरे हमारे नॉर्मली यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सारे यूनिवर्स ऑल थिंग्स आर ट्राई टू अटेन द स्टेबिलिटी, है ना. सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या कर रही है? स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं. यू आर स्टडिंग फॉर व्हाट? टू अटेन द स्टेबिलिटी, राइट ना, टू बिकम अ पॉपुलर गाय वी कैन से, और यू वांट टू बिकम समथिंग, राइट, जो जिसका जिसका किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ एक क्या बोले प्रोफेशनल डिग्री हमको लेना है. तो अगर हम लोग देखेंगे तो आप स्टडी क्यों करें? टू अटेन द स्टेबिलिटी. आई एम टीचिंग यू फॉर व्हाट? टू अटेन द स्टेबिलिटी. आई वांट मनी, आई वांट टू डू समथिंग विच आई हैव थॉट. मैंने जो सोचा हूँ मैं उसके वो मेरे को करना है, तो इसलिए मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ. हर एक की अपनी अपनी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, इजंट इट. जिसके पास रोटी है वो कपड़े के लिए भागता है, कपड़ा है वो मकान के लिए भागता है, मकान है तो वो क्या करेगा? बैंक बैलेंस के लिए भागेगा, बैंक बैलेंस है तो वो क्या करेगा? बंगलो, बंगलो है तो कार, कार है ना, सो ऑन, है ना. इंसान एक लालची प्राणी है, तो वो उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती. बट इफ यू टॉक अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट जो है वो लालची नहीं होते. हालांकि मोस्टली एलिमेंट जो है इंसानों की तरह बिहेव करते हैं. उनको हम लोग उसके एग्जाम्पल्स लेंगे तो इंसानों को रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं. बट उनका क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी इज ओनली टू, दैट इज ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट. मीन्स व्हाट? अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन वी कैन से दिस एलिमेंट इज स्टेबल. उनको जो नीड है वो कंप्लीट हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है, देयरफॉर दे विल नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर थिंग. अब सिंपल सी बात है, किसी को अगर बोला जाए कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, एक छोटा सा काम कर दे, तो वो इलेक्ट्रॉन वो काम करेगा कि नहीं करेगा? समझो एग्जाम्पल, किसी ने तुमको बोल दिया कि तुमको एक छोटा सा काम करना है, वो काम करने के बाद आप जो है वो करोड़पति बन जाओगे, आप जो इतने पैसे वाले हो जाओगे कि आपको जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप वो काम करोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली करेंगे, हर कोई करेगा. वैसे ही सोडियम को बोला जा रहा है कि भाई तू एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो तेरे पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना. ये गायब हो जाएगा, शेल गायब हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, गायब हो गया, बचे कितने? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. एंड बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सोडियम तो खुशी खुशी करेगा. इसलिए सोडियम जो है वो खुशी खुशी क्या करता है? अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कर देता है. समझा हम लोगों? सिमिलर अगर किसी के पास आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी आसानी से लूज करेगा. इसके लिए ऑप्शन क्या है? ये आइदर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना है. तो इजीली क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना है क्या? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है. 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है. तो जिसके पास आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, द एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 1, 2 or 3 electrons in valence shell, right? Such elements behave or have tendency to lose electron. क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहता है कि भाई वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. 5 इलेक्ट्रॉन लेना इजी नहीं है, उसके मुकाबले में 3 लूज करना इजी है, तो वो लोग लूज कर डालते हैं, इसलिए लोग लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन. समझा? एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? मेटल. अंडरस्टूड बेटा? एंड एज दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन देयरफॉर दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. गरीबी कब आएगी? गरीबी में जमीन सर की केमिस्ट्री में गरीबी मतलब क्या? पॉजिटिव. तो जब कोई बंदा नेगेटिव चीज यूज करेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा ना. यस और नो? एंड देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. तो ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट, व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग का डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स? तो आई विल से द electropositive element which have tendency to lose electrons, such elements are called as what? Metals. Understood? And all metals except mercury are solid nature. We all know that जितने मेटल हमारे सामने आए हैं अब तक के, वो सारे मेटल्स जो है क्या है? लोग बोलो क्या है? वो लोग सॉलिड इन नेचर है, isn't it?